Hello everyone, welcome back to e-education with Harsh Chakkar. In this part of video, we will learn types of plan. So, first plan is objectives. Objective means the main goal of the organization which they want to achieve. They means the people of the organization itself. The main goal the organization wants to achieve with available resource and strength opportunities, that is called objectives. Objective must be in quantitative values, and objective should be in the form of written documents. Objective का मतलब है क्या करना है, what to do, whether it is survival phase, whether it is profit phase, whether it is growth phase, whether it is social objectives, whether it is personal objectives. Everything should be in written documents, and the target should be achievable, and it must be expressed in quantitative values. Example, a firm wants to earn 10 percentage profit of total investment. So it is quantitative 10 percentage. So everything must be in quantitative values, and it should be in written documents. The first type of plan means what organization wants to do, what organization wants to achieve with available strength, resources, and opportunities. That is called objective. Second plan is strategy. Strategy means it's a game plan. This word is quite familiar to the cricketers. वहां पर हम अक्सर सुना करते हैं कि आज की स्ट्रेटेजी क्या है. स्ट्रेटेजी मीन्स हाउ टू अचीव योर गोल, है ना. तो स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान मेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर ट्रस्ट, हाउ टू गेन कस्टमर ट्रस्ट, how to be in the market in front of competitors, etc., etc., etc. Means game plan. If you want to achieve your organizational goal, you have decided in quantitative format, then how to achieve, कैसे उसको achieve करे, वो जो game plan है, that is called strategy. Strategy refers to the future decisions, defining the organization direction and scope in long run. What strategies gives कि भाई आपको कोई सिचुएशन इन फ्यूचर आती है तो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, आगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करे, स्ट्रेटेजी विल गिव द आंसर. एग्जांपल देते हैं कि भाई ब्रांड नेम प्रोडक्ट का जो होगा वो कैसे मार्केटिंग किया जाए. अगर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है. जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पैकिंग कैसे होना चाहिए, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए. मींस मैनेजर मेक स्ट्रेटेजी टू काउंटर द थ्रेट एंड अडॉप्ट द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जितने जितने चेंज होते जा रहे हैं उतने हमारे थ्रेट को ओवरकम करना है, कैसे हमारी अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करते हुए. तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग गेम प्लान होता है. जैसे 10% बोल दिया कि वी वांट टू अचीव 10% प्रॉफिट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएगा, मार्केटिंग वाले उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगेन make the strategy according to the need. So strategy means game plan to achieve the organizational, social goal or personal goal. So first the objective. Objective means what to achieve. Second, strategy means how to achieve. Third one is policy. Policy means it gives guidelines for the day-to-day decision making process. Policy means first of all objective, what to achieve. Second one is strategies, how to achieve. And strategies का सब पार्ट होता है पॉलिसीज. स्ट्रेटेजी लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इसमें हमने बहुत सारी चीजें, ब्रांड नेम हुआ, पैकेजिंग हुआ, मार्केटिंग हुआ, बट हर एक के अंदर एक सब प्रोसीजर, सब पॉलिसीज आती हैं. दैट इज कॉल्ड पॉलिसी डे टू डे लाइफ में. जैसे एचआर पॉलिसीज हैं कि भाई रिक्रूटमेंट पॉलिसी. रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि हाउ टू रिक्रूट द पर्सन, है ना. प्राइसिंग पॉलिसी, हाउ टू फिक्स द प्राइस. हमारी मार्केटिंग में था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था कि इफेक्टिव प्लानिंग, इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी, बट इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, बट वो स्ट्रेटेजी को
डिफाइन कौन करेगा? प्राइस को डिफाइन कौन करेगा? दैट इज प्राइसिंग पॉलिसी आता है। सेल्स को प्रमोट करना है, दैट इज स्ट्रेटेजी कि वी नीड टू प्रमोट आवर सेल्स, बट सेल्स को कैसे प्रमोट करना है, डे टू डे डिसीजन कौन देगा? पॉलिसीज देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था आपका ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू अचीव। सेकंड स्ट्रेटेजी, हाउ टू अचीव। पॉलिसी मींस डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्लान कि भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो इंटरनल मैटर्स के अंदर क्या डिसीजन लिया जाए, दैट इज द सॉल्यूशन इज पॉलिसी। Policies regarding various matter are designed by taking the opinions by individual working in the organization। ये पॉलिसीज कैसे बनती हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर से पूछा जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। उस हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर्स को अच्छा लगे तो दैट डिसीजन विल बी ऑफ part of policy। So policy means the principle of action which guides day-to-day decision making process। It's a general statement that guides decision making of internal matters। अब स्ट्रेटेजी वर्सेस पॉलिसी देख लेते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। स्ट्रेटेजी मींस बेस्ट प्लान सिलेक्ट होता है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बट पॉलिसी क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आता है। वी कैन से दैट स्ट्रेटेजी इज अ मास्टर प्लान एंड पॉलिसी इज अ डे टू डे प्लान और वर्किंग प्लान। स्ट्रेटेजी डील्स विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर, क्योंकि स्ट्रेटेजी में बहुत कुछ आता है बिजनेस के, नहीं एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें मास्टर प्लान में इंक्लूड होती है। बट अगर डे टू डे की बात करें, डे टू डे मीन्स हमारा इंटरनल मैटर्स, जो हमने आगे भी पढ़ा कि भाई पॉलिसी इज रिलेटेड विद द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट्स द एक्शन प्लान वेयर पॉलिसी रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। कि भाई गाइडलाइन देता है, प्रिंसिपल्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस देता है कि भाई डे टू डे वर्क कैसे किया जाए। और स्ट्रेटेजी का एक्शन प्लान होता है, एक्शन प्लान मींस मास्टर प्लान होता है कि क्या करना है। स्ट्रेटेजीज कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन, कि भाई स्ट्रेटेजी, बिजनेस एनवायरमेंट आपका डायनेमिक है तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आप क्रिकेट में भी देखते हो अगर बैट्समैन ऐसा खेल रहा है तो शायद बॉलर का सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है, बट पॉलिसी सेम रहती है, जैसे आप अब्यूज नहीं कर सकते, है ना। तो पॉलिसीज जो नेचर में होती है वो यूनिफॉर्म इन नेचर होती है, बट स्ट्रेटेजीज कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजीज फोकसेस ऑन एक्शन वेयर पॉलिसीज आर डिसीजन ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है? क्या करना है, और पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो डिसीजन ओरिएंटेड प्रोसेस में वो काम आता है। लास्ट वन इज स्ट्रेटेजीज आर प्रिपेयर्ड बाय बोथ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और पॉलिसी कौन करता है? हमने आगे भी देखा कि भाई पॉलिसीज को बनाते हैं वर्कर्स। इट मींस दैट शायद वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा गाइडेंस दिया गया है, बट जनरल मेड होता है, वो कौन डिसाइड करता है, फाइनल अथॉरिटी कौन होता है? बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ प्रोसीजर, अगेन मैं पहले से डिस्क्राइब करता हूं। पहला था ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मींस व्हाट टू अचीव। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज मींस हाउ टू अचीव। पॉलिसीज मींस कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डे टू डे में काम आता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। बट पॉलिसीज होती है वो क्या होती है? एक प्रोसीजर के थ्रू होती है। अगर आपने बोल दिया कि भाई हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय, तो कैसे प्रोसीजर? हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय तो आपने बोल दिया कि भाई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज लेंगे, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, बट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या करना होता है? तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है तो उसका आंसर है प्रोसीजर। प्रोसीजर आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स which are taken in a specific situation। अगर आपको एम्प्लॉय हायर करना है, मींस रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में क्या करना है? तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में करना है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय हायर करना है तो उसकी कैंडिडेट की फाइल बनानी पड़ेगी, उसके स्कोर्स ऐड करने पड़ेंगे, उसको इंटरव्यूअर को फाइल देनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज अ प्रोसीजर टू हायरिंग एम्प्लॉय। तो आपका क्या है कि सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, मींस व्हाट टू अचीव, हमने ऑब्जेक्टिव में बता दिया। उसके बाद एक बड़ी सी स्ट्रेटेजी बना दी कि भाई हाँ मास्टर प्लान है हमारा कि हाउ टू अचीव द गोल। उसको जो सपोर्ट करेगी डे टू डे सिचुएशन में वो करेगी हमारी पॉलिसीज। बट पॉलिसीज मींस
कि आपको एक पर्टिकुलर वे से जाना है, और वो कौन डिफाइन करेगा? प्रोसीजर्स डिफाइन करेगा। सीरीज ऑफ स्टेप, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। बहुत बार हमने सुना है कि प्रोसीजर बहुत लंबा है, प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है। प्रोसीजर मींस स्टेप बाय स्टेप we have to go in a specific situation. कभी कभी प्रोसीजर्स बहुत लॉन्ग होता है, इट मींस दैट a step requires more than required time, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। और प्रोसीजर्स का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप हर एक सिचुएशन को फेस करना। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, क्योंकि पॉलिसीज क्या करता है कि आपको मेन फ्रेमवर्क देता है कि भाई हायरिंग करने के लिए कौन सी पॉलिसी है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या करना है, स्टेप्स कौन से हैं, वो क्या हो गया आपका? प्रोसीजर हो गया। तो मींस पॉलिसी गिव्स द फ्रेमवर्क वेयर प्रोसीजर रिप्रेजेंट्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स। पॉलिसीज वर्सेस प्रोसीजर देख लेते हैं। पॉलिसी प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द डिसीजन मेकिंग, वेयरएज प्रोसीजर आर द सीक्वेंशियल स्टेप। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। पॉलिसी प्रोवाइड्स ब्रॉड फ्रेमवर्क, वेयरएज प्रोसेस आर कैरिड आउट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। कि भाई आपको एक एम्प्लॉय को हायर करना है तो आप किस हिसाब से करोगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करोगे, तो भाई हमारी जो पॉलिसी है उस हिसाब से। कोई बोलेगा मुझे इतना सैलरी चाहिए, तो आपका आंसर होगा एज पर पॉलिसी विल गिव यू। पॉलिसी मीन्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क, और प्रोसीजर मीन्स it is a small steps, sequential steps which will be followed within the boundary of the policy framework. Next, third one, policies are framed by the top level, whereas setting up procedure are work of middle level and लोअर लेवल। ब्रॉड जो आपका फ्रेमवर्क है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बताता है, उनको तो बता के चला जाना है, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी स्टेप्स कौन डिफाइन करेगा? मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू द एक्टिविटी फील्ड। नेक्स्ट इज मेथड। आपने प्रोसीजर डिफाइन कर ली, तो प्रोसीजर के जितने भी स्टेप्स है वो स्टेप को भी फॉलो करने के लिए क्या होती है? मेथड्स होती है। कि भाई आपको बनाना है कि भाई एम्प्लॉय को हायर करने के लिए फर्स्ट प्रोसीजर थी कि टू मेक द एम्प्लॉयज फाइल। अब उस फाइल में क्या क्या होना चाहिए, तो भाई उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी प्रूफ ले लो, उसके बाद 10th की मार्कशीट लो, 12th की मार्कशीट लो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स लो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फिलअप करवाओ, उसके बाद डिक्लेरेशन करवाओ, उसके बाद अंडरटेकिंग करवाओ। तो ये पूरी एक प्रोसीजर है, बट प्रोसीजर को कैसे करना है उसको गाइडेंस कौन देगा? मेथड देगा। मेथड प्रोवाइड्स वे टू परफॉर्म द टास्क, कि भाई आपको क्या करना है और कैसे करना है, वो कौन बताएगा? मेथड बताएगा। इट स्पेसिफाई हाउ एवरी स्टेप ऑफ प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म टू टेक द बेस्ट रिजल्ट। आपकी प्रोसीजर को पता है कि क्या क्या करना है, इट इज सीरीज ऑफ स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, बट हर एक स्टेप में क्या करना है वो कौन बताएगा? मेथड बताएगा। मेथड गाइड for day-to-day action and helpful in simplification and standardization। जब simplification and standardization हम पढ़ रहे थे तब डोमिनोज का एग्जांपल लिया था कि हर एक पर्सन को पता है कि उसका काम क्या है और वही काम में वो मास्टर है। तो एक मेथड उसको सिखाई गई है कि अगर डो बनाना है तो इतना ही फ्लोर लेना है, इतना ईस्ट डालना है, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ही ग्राम ये होना चाहिए, तो उसका क्या हो गया? वो मेथड हो गई। अगर आपको ओवन में डालना है तो आपको पता है कि कहां से डालना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कब बाहर निकालना है, दैट इज द मेथड्स कि हाउ टू परफॉर्म योर डे टू डे एक्शन। एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर imparting training to top level management, orientation program, lectures and seminar can be organized, whereas for supervisor level on the job training methods are appropriate। उसका मतलब होता है कि भाई एम्पावर करना है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो वो तो क्या करेंगे? वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया जा सकता है, उनको लेक्चर दिया जा सकता है, उनको सेमिनार अटेंड करने के लिए भेजा सकता है। बट सुपरवाइजर को क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको सुपरवाइजर को ट्रेनिंग देनी है तो ऑन जॉब ट्रेनिंग ही देनी पड़ेगी। अगर उसको 15 दिन बाहर भेज दिया तो आपका वर्क तो अटक जाएगा। तो हर एक प्रोसेस को, एक हर एक प्रोसीजर को कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए, हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क to get the best result, then answer is method। Method is the
point which guides to take step for the appropriate procedure performance. प्रोसीजर वर्सेस मेथड कर लेते हैं कि भाई प्रोसीजर क्या है, तो इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, बट मेथड क्या है? मेथड गिव्स द specific guidance how to perform each and every step. Procedure helps in execution of policy, where method is helps to execution of procedure. पॉलिसीज जो होती है उनको कौन सपोर्ट करता है? प्रोसीजर सपोर्ट करता है. सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो होता है वो सपोर्ट करता है. सीक्वेंस ऑफ स्टेप को कौन सपोर्ट करता है या तो फिर इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है? दैट इज मेथड. और प्रोसीजर आर वाइडर देन मेथड्स, क्योंकि मेथड एक नैरो कंसेप्ट हो गया कि भाई ये ऐसे ही करना है, करने के बाद खत्म. बट प्रोसीजर क्या है कि उसके बाद का मेथड क्या है. एक मेथड खत्म होने के बाद प्रोसीजर खत्म नहीं होती, दूसरी मेथड स्टार्ट होती है. तो प्रोसीजर क्या है? वो वाइडर, जिसको बोला जाता है इन स्कोप. दैट इज प्रोसीजर्स आर वाइडर इन स्कोप, वेयर इज मेथड्स आर नैरो इन स्कोप. सिक्स्थ वन इज रूल्स. अब रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है जो बदलता नहीं है. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लान. लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान. सिंगल यूज प्लान मींस एक बार हो गया तो उसको बाद रीफ्रेम करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, चेंज हो जाता है. बट बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते. जैसे नो स्मोकिंग, यहाँ पे भी लिखा है कि भाई नो स्मोकिंग का मतलब कोई भी सिचुएशन में स्मोकिंग नहीं करना है, वो कभी भी रूल चेंज नहीं होगा. और वो रूल क्यों बनाए जाते हैं? टू सपोर्ट योर मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज. कि उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो प्लान होता है दैट इज कॉल्ड रूल बुक. और रूल बुक के अंदर रह के ही सबको काम करना पड़ता है. क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, वो कौन दिखाएगा? रूल दिखाएगा. रूल कौन सा प्लान होता है? स्टैंडिंग प्लान होता है जो कभी चेंज नहीं होता है. वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बताता है व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, और वो कभी भी चेंज नहीं होता है. पॉलिसीज वर्सेस रूल्स देख लेते हैं कि भाई पॉलिसीज क्या करता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है कि क्या करना है. बट रूल क्या करता है कि एक्टिविटी में क्या करना है, क्या नहीं करना है देता है. पॉलिसी गाइड करता है फॉर्मल और फॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजर के क्या प्रोसीजर होनी चाहिए. बट रूल क्या करता है? उस मेथड को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है कि इस मेथड पे ये करना है, ये नहीं करना है. पॉलिसी डिटरमाइंस द ऑथोरिटी ऑफ मैनेजर्स, वेयर एज रूल स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर वर्किंग. के ये होगा तो ही काम होगा, ऐसा होगा तो ही काम कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड रूल्स. प्रोग्राम. प्रोग्राम मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जहां पर आपकी स्ट्रेटेजीज आ गई, आपकी पॉलिसीज आ गई, आपकी प्रोसीजर्स आ गई, आपके मेथड्स आ गए, आपके रूल्स आ गए, सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो प्लान रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. बहुत बार हम जनरल लैंग्वेज में पूछते हैं आज का प्रोग्राम क्या है, मीन्स आज का आपको सब कुछ बताना है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. तो प्रोग्राम टू टाइप्स के होते हैं, मेजर प्रोग्राम्स एंड माइनर प्रोग्राम्स. मेजर प्रोग्राम्स इज अ बेसिक प्लान टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव. कि भाई आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है कि 10% कैसे हाइक लेना है, तो उसके अंदर सब कुछ होगा. भाई ऑब्जेक्टिव भी हो गया 10% हाइक, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज भी हो गई, उसके सपोर्टिव पॉलिसीज भी हो गए, पॉलिसीज के प्रोसीजर्स भी हो गए, प्रोसीजर्स के मेथड्स भी हो गए, मेथड का फ्रेमवर्क यानी रूल्स भी हो गया, है ना. तो ये है प्रोग्राम. प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान designed to implement the policies mainly regarding social and personal objectives. It can be defined as a combination of goals, policies, procedures, rule, task, step, everything. Major program होता है वो क्या होता है? Basic plan होता है. And minor program is formulated by the supervisor to improve the moral of the employees. कि कैसे अपने एम्प्लॉय को बूस्ट अप करें, उसके लिए जो कोई प्रोग्राम होता है उसको क्या कहेंगे हम? माइनर प्रोग्राम कहेंगे. And last आता है that is called budget. Budget means money matter. It's a financial statement. So a budget is a statement of expected result expressed in the numerical term. Numerical term का मतलब क्या होता है? हर चीज उसमें
नंबर के हिसाब से होती है कि भाई कितना लेबर काम करेगा, कितने यूनिट का प्रोडक्शन होगा, मशीन आवर्स कितने होंगे, प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा। कोई भी स्टेटमेंट जो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, बजट। बजट यहाँ पर सिर्फ मनी मैटर के लिए काम नहीं करेगा, उसके अंदर आपका नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर्स ऑफ मशीन आवर्स, ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। भाई कैश बजट कितना है हमारा, सेल्स बजट कितना है हमारा, है ना, प्रोडक्शन बजट कितना है, जो भी न्यूमेरिकल टर्म में रिप्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड बजट। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान। अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। व्हाट टू अचीव मीन्स ऑब्जेक्टिव, हाउ टू अचीव मीन्स स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज का आपको एक फ्रेमवर्क होता है स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने का, दैट इज कॉल्ड पॉलिसीज। पॉलिसीज के बाद आता है उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेप ऑफ सीरीज, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स को मेंटेन करने के लिए होता है मेथड्स। मेथड्स को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करना है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, वो देते हैं रूल्स। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। और जो न्यूमेरिकल टर्म में रिप्रेजेंट होते हैं स्टेटमेंट्स, दैट इज कॉल्ड बजट। तो 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स आर देयर। दो तरह के प्लान्स होते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। आगे भी हमने डिस्कस किया कि सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है कि वन टाइम पर्पस होता है कि भाई उसका एक ही बार काम होता है। अगर एक बार वो टास्क को अचीव कर लेते हैं उसके बाद वो प्लान क्या हो जाता है, रीप्लान करना पड़ता है। जैसे बजट, बजट 2020-2021 में वो काम नहीं आएगा, आज का प्रोग्राम कल काम नहीं आएगा, दैट इज फॉर सिंगल यूज प्लान। एक बार इंप्लीमेंट हो जाने के बाद वो दूसरी बार काम नहीं आता है। तो सिंगल प्लान डेट का भी हो सकता है, वीक का भी हो सकता है और मंथ का भी हो सकता है। तो सिंगल यूज प्लान आर डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क जो एक ही बार इंप्लीमेंट होता है। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब होता है वो रेगुलर एक्टिविटी को सपोर्ट करता है और कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट पॉलिसी सबके लिए सेम होती है। मेथड्स कि भाई इसी हिसाब से काम करना है, वो मैनेजर की फाइल बनाना हो या प्यून की फाइल बनाने हो, मेथड सेम है। मेथड सेम है मींस उसके स्टेप ऑफ सीक्वेंस, स्टेप ऑफ सीरीज सेम है, प्रोसीजर सेम है, रूल्स रेगुलेशन, नो स्मोकिंग सबके लिए सेम है। तो स्टैंडिंग प्लान फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, आज पॉलिसी कुछ अलग थी, कल मेथड्स कुछ अलग थी, प्रोसीजर का चेंजेस हर दिन नहीं होता है। बट यहाँ पर बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि भाई स्ट्रेटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्योरली सिंगल यूज प्लान और इट्स अ प्योरली स्टैंडिंग प्लान, तो इट इज रॉन्ग। स्ट्रेटेजीज भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती जाती है और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो इट्स नॉट प्योरली single use plan or not purely standing plans. So I hope it is clear to everyone. Please like, share and comment. If you have any doubt, then please write your doubt in comment. Thank you and have a blessed day ahead.